मैं चारू शर्मा, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। फुटबॉल में भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए होगा शोध। आईएमटी गाजियाबाद करेगा एआईएफएफ का सहयोग। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह विजन दिया है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व पटल पर एक फुटबॉल की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जाए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए गंभीर प्रयास आरंभ कर दिए हैं। इतने बड़े विजन को हासिल करने के लिए शोध की आवश्यकता है, गहन अध्ययन की जरूरत है और एक प्रमाणिक डेटा बेस अपेक्षित है। शोध, गहन अध्ययन एवं डेटा बेस के अभाव में ना तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग संभव है और ना ही उसका क्रियान्वयन। विश्व में जितने भी स्पोर्ट्स पावर हैं उनके पास डेटाबेस और प्रमाणिक शोध लगातार उपलब्ध होते रहते हैं। इन देशों में उच्च शिक्षण संस्थान उन्हें बराबर शोध, अध्ययन एवं डेटाबेस उपलब्ध करवाते रहते हैं, परंतु भारत में खेलों को लेकर इस प्रकार के शोधपरक अध्ययन संस्थान हैं ही नहीं। परंतु इस दिशा में देश के विख्यात प्रबंध संस्थानों में से एक आईएमटी गाजियाबाद ने जरूर एक पहल की है। Growth for the country. See, we keep reading how community starts dreaming in a different way. Their entire outlook changes. The hope becomes, much more. What we see is that is always gives us hope, yeah? And we can always move towards that direction where it's not only the success on the sporting pitch. But and as Kanish mentioned, we are supporting bigger countries in football. Those top countries like Argentina. I think more people from India supported than the overall population of Argentina itself. India was the second most visited fan base in Qatar. That's where the football is in the minds of the people in India. But then that is where we just come up with ideas, come up with approaches which would position football in India in the right sphere. And that would have a huge impact. Find this day as a momentous day when after 10 years when they will look back. And they'll say it was the right decision. This decision is not only impacted, but it has also created a value chain for the institute itself. So that way, the win-win situation we would like to create, and I am sure this will become an example in India for other sport also to collaborate, because we are very low in capacity. I have to accept that. We being football federation, will help us to bridge that gap, and I am sure we will live up to the expectation of the management of IMT Ghaziabad, and we will deliver from our side whatever expectations are to fulfill our side of areas, and I am sure this would become a great success story where our media friends, they will see that this was just not on paper, but then this was something making difference, and that is what we want, because we want every minute of us investing in football to take Indian football forward, and we believe in this big project, and we believe in our vision 2047. We will change, as Kanishk had few questions when he addressed that we have talent, as he said. Yes, we have talent, no doubt. Can we get there at the top? Absolutely, we can get there top. Can we produce together and work as one? And that is where we will transform football in India and create such success stories where football will become the number one sport, and we will do that as long as we will be part of football in India. The goal and vision and the motivation and encouragement I work with, and I'm sure we all will change
the landscape of Indian football. Students of Ghaziabad will be from tomorrow or from today. They will be ambassadors monthly something, engaging the students here because they have greater connect today with social media, with the interactions. Everyone has a role. We cannot say that only the decision makers have a role. No, everyone plays an important role, and that's where we build something, and that is what we need to change, and that is where the student will play a bigger role. And if we can do something more for the student here, we will always be open for that as well. So therefore, at the end, once again, thank you for inviting us here, and this would be a great success. And my best wishes to the management and everyone who is going to be part of this journey together on this collaboration. Thank you once again. Thank you. Thank you. Know how to move their mind. At the same time, they should be able to know and experience how they can move their legs and hands, and that sport can give. Sports can give how to manage a sick unit and make a sick unit to be healthy, and the football can give a lot of management best practices from the pitch to off the pitch, and those decision makers will be able to learn. So therefore, we need to marry the business community and the football community in India in a big way. Even if we work for next 100 years or 24/7, and India with going to be the biggest population in the world, we will have the biggest population of talent. ये IMT गाजियाबाद और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हम आज जो MOU साइन हुआ है, इसकी जो विशेषता ये है कि हम फुटबॉल रिसर्च और जो IMT गाजियाबाद के जो इनका जो स्ट्रेंथ है बिजनेस एरियाज़ पे, मार्केट एरियाज़ पे और रिसर्च एरियाज़ पे, तो इस ये जो फुटबॉल फेडरेशन और IMT गाजियाबाद के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि इस कोलैबोरेशन के द्वारा हमें उम्मीद है कि हम फुटबॉल को और मजबूत कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि आज के दिन हमारी जो संस्था है फुटबॉल फेडरेशन, हमारे पास ये काबिलियत नहीं है कि हम मार्केट में जो सोच है मार्केट की और जो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो हमसे क्या क्या चाहते हैं, और हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है जो पैसा लगाते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो क्या सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये और फुटबॉल को और मजबूत करने के लिए क्या क्या हमें और सुविधा और कदम लेने चाहिए, इस पे भी बहुत स्पष्ट क्लैरिटी आएगी। और ये बहुत बड़ा एरिया है और इसमें हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास IMT गाजियाबाद अगर फुल टाइम हमारे साथ हो तो बात अलग है। क्योंकि देखिए ये एक हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मैनेजमेंट की तरफ से IMT गाजियाबाद मिस्टर विशाल को और उनकी टीम को कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है कि फुटबॉल के साथ आना चाहते हैं और फुटबॉल को मजबूत करना चाहते हैं, और उनमें ये विश्वास है कि फ़ुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है इंडिया में जो मजबूत होगा और इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है फुटबॉल। तो ये एक सोच जो है वही एक बड़ा मतलब हमारे लिए इंकरेजमेंट है फुटबॉल फेडरेशन के लिए। हमारे भारत में खेल तो काफ़ी है, लेकिन फुटबॉल ही आपने क्यों चुना? क्योंकि हम फुटबॉल फेडरेशन से हैं, तो हमारा काम ही फुटबॉल है। देखिए IMT गाज़ियाबाद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर है, और
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। उनकी एक स्ट्रेटजी विज़न है 2047 की। उन्होंने हमें बोला है कि एशिया में हम टॉप 4 पे आना चाहते हैं। इसके लिए हमारा विश्वास है IMT गाज़ियाबाद का कि काफ़ी हद तक एक प्रबंध संस्थान जो हम हैं, काफ़ी जो स्ट्रेटजी, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट, टारगेट ग्रुप, टारगेट मार्केट जो भी है, एफिशिएंसीज जो होती हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्ट्रेटेजिक विजन को अचीव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें लग रहा है कि IMT गाज़ियाबाद और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये जो कोलैबोरेशन है, टाई अप है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। बिकॉज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक बहुत इस्टेब्लिश संस्थान है, IMT गाज़ियाबाद एक बहुत इस्टेब्लिश प्रबंध संस्थान है। एक नेचुरल कोलैबोरेशन ये बनता है हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। फुटबॉल का जो आज कार्यक्रम है, इसमें तो दिक्कतें आने की कुछ संभावना है? देखिए, क्रिकेट का एक अलग दर्जा है, फुटबॉल का एक अलग दर्जा है। फुटबॉल अगर आप देखेंगे काफ़ी ग्रास रूट लेवल तक फुटबॉल खेला जाता है। बहुत लोग इसको प्रोफेशनली लेते हैं आगे। तो आई थिंक काफ़ी स्कोप है फुटबॉल के लिए, बिकॉज फुटबॉल एक ग्रास रूट स्पोर्ट है, एक मास स्पोर्ट है। और इसको कुछ अगर हम ट्रिगर्स दें, इसको कुछ स्ट्रेटेजाइज करें, ये खेल जो दुनिया भर में इतना प्रचलित है, इतना पॉपुलर है, इंडिया में भी आगे बढ़ सकता है। कुछ अपने गाज़ियाबाद के कुछ क्षेत्रवासी को संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जो हम कार्य कर रहे हैं या जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत लोग को जुड़ना चाहिए साथ में। IMT गाज़ियाबाद ने अपने स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर के थ्रू काफ़ी कुछ हासिल किया है। जो हम प्रोग्राम करेंगे, जो हम कार्यक्रम करेंगे, जो हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, जो हम यहाँ पे आयोजित करेंगे, इससे ऑब्वियसली क्षेत्रवासी जो हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हम चाहेंगे वो हमारे साथ जुड़ें। हम आगे काफ़ी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट होंगी। थैंक यू। इनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इतना हम नहीं कर पाएंगे। किस तरह के शोध किए जाएंगे जिनके जरिए, क्योंकि कमोबेश ये देखा गया है कि इंडिया में खासकर क्रिकेट की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का। देखिए, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो इसी चीज़ में है कि किसी एरिया में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट कैसे किया जाता है, स्पोर्ट्स को बढ़ाया कैसे जाता है। और फुटबॉल का क्रेज़, जैसे अभी शाहजी सर ने बताया, बहुत ज़्यादा है। कतर में जो सेकंड बिगेस्ट फ़ैन बेस था वो इंडिया का था। यानी कि लोग आज खेलना चाहते हैं, बस उनको एक ज़रिया देना है कि किस तरह से खिलवाना है, और उसी में हम लोग एक्सेल करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत स्कोप है इसमें काम करने का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं। अच्छा, ये जो रिसर्च हो रहा है, इसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कोई टाइम बाउंडेशन है? और जो मेन पॉइंट होंगे रिसर्च के, वो क्या क्या रहेंगे? देखिए, ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये 3 साल का अग्रीमेंट है। और रिसर्च के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि कैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर गेम यानी फ़ुटबॉल को आगे कंट्री में डेवलप करना है। क्या क्या गैप्स हैं जो इंडियन फुटबॉल में एग्जिस्ट करते हैं। आज अगर बच्चे कम फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें काम होगा कि प्रॉब्लम एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर उनको प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जाएगा। स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स को छोड़ सकते, तो स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए क्या है अपने? देखिए, जहाँ तक हम फुटबॉल की बात करते हैं, तो जिस तरह का रिस्पांस हमें AIFF की तरफ से मिला है, वो उस चीज़ ने हमें और मोटिवेट और इंस्पायर किया कि हम कैसे इनके साथ आके काम करें और इंडिया में फ़ुटबॉल को डेवलप करें। तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है काम करने का, और फ्यूचर इंडियन फुटबॉल का बहुत ब्राइट है। जिस तरह की संस्था आपका काम करती है, हमेशा गेम्स को लेकर करती है, तो ऐसे में कहीं नहीं आपको लगता नहीं है कि क्रिकेट आज भी कहीं ज़्यादा पसंदीदा गेम है बशर्ते फुटबॉल? तो ऐसे में क्या परेशानी आपके सामने आने वाली है? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी। ऑफ कोर्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया में, लेकिन फुटबॉल भी इवॉल्व हो रहा है, फुटबॉल भी डेवलप हो रहा है। सो इसमें पोटेंशियल बहुत है, बस हमारा काम है कि इस पोटेंशियल को कैच कैसे करना है।